میں بارش اور سیلاب کے باعث مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ NDMA نے نقصانات سے متعلق نئی رپورٹ جاری کر دی۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 1574 ہو گئی۔ امدادی سرگرمیاں جاری۔ مسلم لیگ نون پنجاب با یوتھ میڈیا کی صدر شمائلہ رانا کا جامپور، راجنپور اور رجحان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ سیلاب متاثرہ خواتین اور بچوں سے ملاقات کی۔ 200 گھرانوں میں راشن اور 20 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے۔ جیکب آباد کے نواحی گاؤں میں سیلاب متاثرین پریشان۔ راشن اور ٹینٹ نہ ملنے پر متاثرین ضلع انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج۔ متاثرین کا کہنا ہے ضلع انتظامیہ من پسند لوگوں کو ہی راشن اور ٹینٹ دے رہی ہے۔ جہانیہ سپر ہائی وے پر ٹرالر اور ٹرک میں تصادم۔ حادثے میں ٹرالر ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ٹرک ڈرائیور سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رینالہ خورد تھانہ سٹی کی حدود میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں۔ ڈاکو مقامی پان شاپ سے 2,30,000 روپے لوٹ کر فرار۔ پولیس جرائم کنٹرول کرنے میں ناکام۔ شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے۔ سیالکوٹ پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اغوا، چوری اور منشیات فروشی جیسے جرائم میں ملوث ملزمان گرفتار۔ مقدمات درج کر لیے گئے۔ پولیس علاقے سے جرائم کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ اور اوکاڑہ تھانہ صدر پولیس کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 2 پتنگ فروش گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے پتنگیں اور ڈور برآمد کر لی گئی۔ DPO فرقان بلال کا کہنا ہے انسانی جانوں سے کھیلنے والے رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز۔ اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ مسلم لیگ نون پنجاب یوتھ میڈیا کی صدر شمائلہ رانا کا جامپور، راجنپور اور رجحان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ 200 گھرانوں میں راشن اور 20 لاکھ روپے کی رقم تقسیم کی۔ مرزا فرحان، خواجہ آفتاب، فاروق خلیل احمد سمیت دیگر شخصیات بھی ہمراہ تھیں۔ شمائلہ رانا نے سیلاب سے متاثرہ خواتین اور بچوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر شمائلہ رانا کا کہنا تھا کہ مشکل کی گھڑی میں ہم سیلاب متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ افراد جس کرب سے گزر رہے ہیں وہ تکلیف دہ ہے۔ امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ نواب شاہ میں الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کا احسن اقدام۔ سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔ اس حوالے سے تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا جس کے مہمان خصوصی جماعت اسلامی کے ضلعی امیر سرور احمد قریشی تھے۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، کروڑوں لوگ متاثر ہوئے۔ تقریب میں جماعت اسلامی کی ضلعی جنرل سیکرٹری سردار احمد رائی اور الخدمت کے رضاکار بھی موجود تھے۔ کراچی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سول ہسپتال سپرنٹینڈنٹ چیئرمین اور پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگائے گئے۔ مزید جانتے ہیں انور مکسی کی اس رپورٹ میں۔ سیلاب سے متاثر افراد کو طبی سہولیات فراہم کرنا ہمارا مشن ہے۔ یہ بات میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سول اسپتال ڈاکٹر روبینہ بشیر نے سول اسپتال کراچی کے تحت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے اشتراک سے قائم فری میڈیکل کیمپ کے موقع پر کہی۔ اس موقع پر چیئرمین سول اسپتال ڈاکٹر شکیل احمد صدیقی، پریزیڈنٹ پیرا میڈیکل کراچی ڈویژن کے صدر نیاز احمد خاسکیلی اور دیگر بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر روبینہ بشیر نے کہا کہ سول اسپتال نے سیلاب متاثرین کے ریلیف کیمپوں میں
फ्री मेडिकल कैंप कायम की है, जिसमें औरतों, बच्चों और बूढ़े अफराद को डेंगू, मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो जल्दी बीमारी के टेस्ट और उदियत फराम की गई। चौके कराची में आने वाले सैलाब ज़दगान की बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हैं, जिन्हें फ्री तबी इमदाद और इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फ्री मेडिकल कैंप का मकसद ऐसे तमाम सैलाब मुतासरीन को तबी इमदाद फराम करने के साथ इलाज की बेहतरी सहूलियात देना है। डॉक्टर रुबीना बशीर ने कहा कि सैलाब ने करोड़ों अफराद को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया। ना उनके पास रहने के लिए घर है, ना उनके पास खाने के लिए अनाज, जिसकी वजह से वो मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से सबसे ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन मुतासर हुए हैं। और इस मौके पर चेयरमैन सिविल अस्पताल डॉक्टर शकील अहमद सिद्दीकी ने कहा कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ तंदी के साथ ना सिर्फ सैलाब से मुतासर इलाकों में मरीज़ों को इमदाद फराम कर रहे हैं, बल्कि कराची के अलावा जहाँ जहाँ सैलाब मुतासरीन के रिलीफ। हैदराबाद में हाजी मोहम्मद फारूक जलानी अतारी का अहसन इकदाम, सैलाब मुतासरीन में राशन और कपड़े तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में फैजान मदीना फूड डिपार्टमेंट रुकन हाजी मोहम्मद फारूक जलानी अत्तारी का विजिट। बारिश और सैलाब से मुतासिरीन के लिए राशन और गर्म शालें तकसीम की गई। फैजान मदीना अफंदी टाउन में कायम फूड डिपार्टमेंट में पैकिंग के दौरान रुकन शोरा हाजी मोहम्मद फारूक जलानी अत्तारी फूड डिपार्टमेंट का दौरा किया और वहां होने वाले काम का जायजा लिया। इस दौरान FGRF सूबाई ज़िम्मेदार अब्दुल वकील अत्तारी और ज़िम्मेदार भी मौजूद थे। रुकन शोरा ने इस काम को और भी अच्छे अंदाज में करने के हवाले से मदनी फूल फरमाए। इसके अलावा हैदराबाद फैजान मदीना GFR के तहत बारिश और सैलाब से मुतासिर अफराद के लिए फूड डिपार्टमेंट से सूबाई सिंध के मुख्तलिफ शहरों में राशन और गर्म शालें तकसीम की गई। राशन के बैग और इसके अलावा आने वाले मौजूदा सर्दी से बचने के लिए गर्म लिहाफ और शालें मुख्तलिफ। करतारपुर में वफाकी वजीर एहसन इकबाल सिखियात्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कोने कोने पे बसने वाली सिख बरादरी को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तानी कौम आपकी मेज़बानी के लिए अपनी मोहब्बत और अपने जज्बों के साथ आपको वेलकम कहने के लिए तैयार है। भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ। शहरी दिफाई तंजीम के ताउन से डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज़ फड़ाइश ने इमदादी सामान से भरा ट्रक रवाना किया। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से उसामा मुगल की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर DC ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज़ फड़ाइश की खसूसी काविशों से तंजीम शहरी दिफा के ताउन से DG खां के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों के अमल का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी मौजूदगी में सामान से भरा ट्रक रवाना किया। सिविल डिफेंस फरिया जाफिर और दीगर मेंबरान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, के पेश नज़र दुख महसूस करते हुए हमारा एक्सपीडिशन ने एक फैसला किया कि हम उनके लिए अगर वहाँ जाके नहीं करते तो हम यहाँ पे रह के कुछ करेंगे। इस थीम को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 हफ्ते पहले काम करना शुरू किया और शुक्र अल्लाह पाक के हम मुझे ना पहुँचा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फ्लड इफेक्टिव के लिए हमारे म्यूजिशियंस ने हमारे आज हम ये एक ट्रक है जो इमदादी सामान भेज रहे हैं फ्लड रिलीफ के लिए। तो DC साहब ने हमें फरमाया था कि जहाँ बाकी NGOs वगैरह काम कर रही हैं और लोगों को हेल्प आउट करा रही हैं, तो तंजीम शहरी दिफा भी जो है वो एक्टिव हो और वो भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करें। तो उस सिलसिले में फिर हम एक मीटिंग की और अपने तमाम मेंबरान जो हमारे सिविल डिफेंस के दोस्त हैं उनसे फिर हमने रिक्वेस्ट की और ये तमाम लोगों ने, दोस्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हम ये ट्रक जो है एक बनाया है जो कि फ्लड रिलीफ के लिए जो हम बिस्तर, कोई उसके अंदर चटाइयाँ, रज़ाइयाँ, गद्दे, पिल्लोस, बर्तन, कोई मर्दाना जनाना सूट्स और पाक फ़िज़ाइया सैलाब मुतासरीन के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बहाली ऑपरेशंस और तिबी इमदाद की फराहमी में मसरूफ़ अमल है। पाक फ़िज़ाइया के अहलकार सैलाब ज़दगान को रिहाइश, तिबी सहूलियात, खुराक और पीने के साफ़ पानी जैसी बुनियादी ज़रूरियात की बर वक्त फराहमी के लिए अपनी भरपूर खदमात फराहम कर रहे हैं। पाक फ़िज़ाइया के कायम करदा मेडिकल लैब कलेक्शन पॉइंट सैलाब मुतासरीन में बीमारियों की तशख़ीस और इलाज की फराहमी के लिए कोशां हैं।
متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ اماراتی ہلال احمر کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے خیمہ بستیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں ارشد محمود مغل کی اس رپورٹ میں۔ دوست ممالک مشکل کی اس گھڑی میں سب سے آگے ہیں۔ یو اے ای کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ اماراتی ہلال احمر کی جانب سے سیلاب متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء سمیت دیگر ضرورت کا سامان فراہم کیا جا رہا ہے، جس سے یو اے ای کی حکومت نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جبکہ دنوں رات کی کوشش کے بعد سندھ کے کئی سیلاب متاثرہ علاقوں میں خیمہ بستیاں بھی قائم کی جا رہی ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے خیمہ بستیوں کے ساتھ ساتھ ریلیف کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ اس مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ یو اے ای کی حکومت پاکستانی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اماراتی ہلال احمر کی جانب سے سندھ و بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ پہلے دن سے جیکب آباد کے نواحی گاؤں عبداللہ لاشاری اور عیسیٰ ماچی کے مکین راشن اور ٹینٹ نہ ملنے پر ضلع انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ شہید اللہ بخش پارک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ متاثرین کی جانب سے ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا گیا کہ ضلع انتظامیہ من پسند لوگوں کو راشن اور ٹینٹ تقسیم کر رہی ہے، گزشتہ 20 دن سے امداد کے منتظر بیٹھے ہیں۔ پتوں کی میں کھاد بجلی اور زرعی ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر کسان بورڈ کا احتجاج۔ کسانوں کی جانب سے کھاد اور زرعی ادویات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں آصف سعید کی اس رپورٹ میں۔ کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی صدر شوکت علی چدر کی کال پر پتوں کی میں کسانوں نے کالی پٹیاں اور کالی پگڑیاں باندھ کر یوم سیاہ منایا۔ اسی اج ایتھے یوم سیاہ کسان بورڈ دی طرفوں منا رہے ہیں اور یوم سیاہ منان دا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جیڑی ہے انہیں ساڈے بلاں دے بہت ریٹ وداتے نے، ڈی اے پی دے بہت ریٹ کرتے نے، یوریا کھاد مل نہیں رہی اور اگر یہ نہ ملی تو اسی یعنی کہ ساڈی فصلاں دے ریٹ اتھے ہی نے، ساڈی کوئی قیمت نہیں ودی، گنے دی نہیں ودی، گندم دی نہیں ودی اور ودائی بھی ہے تو صرف اینی ودائی جویں آٹے 'چ نمک پائی دا ہے۔ یہ سانوں نا منظور نے۔ اگر یہ ساڈے مطالبات نہ مننے گئے اور نہ پورے کیتے گئے تو اسی یوم سیاہ بھی منا رہے ہیں تو اگے دھرنا بھی دیاں گے، روڈ بھی بند کریں گے، جو ہویا وہ کریں گے۔ اسی پتوکی دے وچ جنہ بھی جو پوری قوت نال کریں گے، پورے زور نال کریں گے اگر گورنمنٹ نے ساڈے مطالبات نہ مننے۔ یوریا نہیں مل رہی، ڈیزل بڑا مہنگا ہے، بل بمیاں دے کرے چوتھا حصہ ود گیا جی۔ انہاں واسطے سارے واسطے جی اسی اس گل تے ذمہ تیار ہیں جی، دھرنا بھی دینے واسطے سارے شوق سب جو حکم کرے دا اسی کرنے تیار ہیں جی۔ کسان بورڈ ضلع قصور کے رہنما شرافت علی اور اختر خان کا مزید کہنا تھا کہ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ جلد قیادت کی کال پر دھرنا بھی دیں گے۔ کیمرہ مین نیاز احمد کے ساتھ آصف سعید، کوہ نور نیوز، پتوں کی۔ ویلکم بیک۔ حیدرآباد میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی جانب سے کرونا ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مہم 24 ستمبر تک جاری رہے گی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف دانش شیخ کی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے جانب سے کرونا ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو آج سے 24 ستمبر تک جاری رہے گی، جس میں حیدرآباد کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں 5 سے 11 سال کی عمر کے تمام
طالبہ و طالبات کو ویکسینیشن لگائی جائے گی۔ حیدرآباد میں اسی سلسلے میں لطیف آباد یونٹ نمبر 8 میں واقع بوسٹن پبلک ہائی اسکول میں پرنسپل اویس اور ریحان کی زیر نگرانی بچوں کو کورونا سے بچاؤ کی فائز نامی خصوصی ویکسینیشن لگائی گئی، جو کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لالا جعفر کے مطابق پورے یورپ اور امریکہ میں لگائی گئی ہیں، جو آج وہی ویکسینیشن حیدرآباد میں بچوں کو لگائی جا رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لالا جعفر نے حیدرآباد کے شہریوں سے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح ہم نے خود کو اور اپنے بزرگوں کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن لگا کر ملک بھر میں ڈینگی کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ضلع انتظامیہ چنیوٹ اور محکمہ صحت بھی ڈینگی کے خاتمے کے لیے متحرک ہو گئی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لالیہ ڈاکٹر شفقت رحمان کی ہدایت پر بنیادی مرکز صحت لنگر رام مختوم سے محکمہ صحت کی ٹیموں نے علاقے کا دورہ کیا۔ پانی کے جوہڑوں اور تالابوں میں ڈینگی کے لاروے کی تلفی کے لیے زہریلی ادویات کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ ایم ایس بہاول وکٹوریہ ہسپتال ڈاکٹر عامر بخاری کا کہنا ہے کہ ڈینگی متاثرہ مریضوں کو بہترین طبی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے فضل جاوید خان کی رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح بہاولپور میں ڈینگی کے وارڈ جاری۔ بہاولپور ہسپتال میں بھی 52 بیڈ کا ڈینگی وارڈ بنا دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی میں بھی ڈینگی کاؤنٹر بھی بنا دیا گیا ہے، جہاں پر ڈاکٹر، میڈیکل سٹاف اور لیب ٹیسٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ سال 2022 میں ڈینگی کے 59 پازیٹیو کیس آئے، 55 مریض صحت یاب ہو کر جا چکے ہیں، 4 مریض بہاولپور ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ایم ایس بہاولپور ہسپتال ڈاکٹر عامر بخاری نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا، سال 2022 میں ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر آف ڈینگی کیسز جو پازیٹیو آئے ہیں ان کی تعداد 59 ہے۔ ایک اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ ان کی ساروں کی ٹریولنگ ہسٹری ہے۔ جو انڈیجنس کیس بہاولپور کا کوئی نہیں ہے، ان میں سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے ہیں۔ باقی بی وی ایچ انتظامیہ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آؤٹ ڈور کے اندر اور ایمرجنسی کے اندر ایک ڈینگی انفارمیشن کاؤنٹر اور سی بی سی کاؤنٹر اور ڈاکٹر کاؤنٹر بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 52 ہم نے بیڈ رکھے ہوئے ہیں جو ڈینگی کے مریضوں کے لیے، اس کے اندر 9 بیڈ ایچ ڈی او کے ہیں اور باقی جنرل وارڈ ہے۔ اور باقی ڈینگی کے لیے جتنے ہمارے پاس اویلیبل کٹس ہیں جو ڈینگی NS1 کرنے کے لیے وہ راؤنڈ دی کلاک اویلیبل ہے، اور ڈینگی کے علاج کے لیے جو ہمارے پاس ادویات ہیں وہ بھی وافر مقدار موجود ہیں۔ اس وقت ٹوٹل ہمارے پاس 4 مریض داخل ہیں، باقی جو ہمارے پاس 55 مریض ہیں وہ صحت یاب ہو کے گھر جا چکے ہیں۔ کیمرہ مین خرم صاحب کے ساتھ فضل جاوید خان، کوہ نور نیوز، بہاولپور۔ جہانیہ سپر ہائی وے پر ٹرالر اور ٹرک میں تصادم، حادثے میں ٹرالر ڈرائیور موقع پر جاں بحق اور ٹرک ڈرائیور سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے تحصیل ہسپتال جہانیہ منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت محمد جاوید خان کے نام سے کر لی گئی ہے۔ زخمیوں میں محمد نواز اور اختر علی شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جہانیہ سپر ہائی وے پر ٹرالر اور ٹرک میں تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ حادثے میں ٹرالر ڈرائیور موقع پر جاں بحق اور ٹرک ڈرائیور سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے تحصیل ہسپتال جہانیہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق شخص کی شناخت محمد جاوید خان کے نام سے کر لی گئی ہے۔ زخمیوں میں محمد نواز اور اختر علی شامل ہیں۔ سیالکوٹ میں پیزا ڈیلیوری بوائے پر تشدد کا معاملہ، پولیس نے تشدد کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں مشتاق بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ سیالکوٹ محمد فیصل کامران نے اس شہری کے ساتھ غیر انسانی اور ظالمانہ سلوک کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے واقعہ میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ ملزمان حماد اور عثمان نے ساتھیوں کے ہمراہ پیزا ڈیلیور کرنے والے دانش پر تشدد کیا، سر کے بال مونڈ دیے، بالوں سمیت زبردستی پیزا کھلاتے رہے، تشدد کیا اور ویڈیو بنائی اور ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر دی۔ SHO تھانہ حاجی پورہ سب انسپکٹر شبیر گیل نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی عمل میں لاتے ہوئے واقعہ میں ملوث دونوں مرکزی ملزم حماد اور عثمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ DPO محمد فیصل کامران کا کہنا تھا کہ شہریوں کے جان و مال کے ساتھ ان کی عزت نفس کی حفاظت بھی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ ایسے تضحیک امیز اور شرمناک جرائم کے مرتکب افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ملزمان کو قانون کے مطابق عدالت سے سلوا دی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد مشتاق بھٹی، کوہ نور۔ سنجے پور تھانہ کوٹ سبزل کی حدود میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو قاسم نامی ڈاکٹر سے نقدی اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں جام ضمیر کی اس رپورٹ میں۔
संजरपुर चकचुरताली के रिहायशी नज़ीर अहमद और उसके भाइयों के साथ कई वारदातें हुई, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ न कर सकी। इस हवाले से नज़ीर अहमद ने अपने भाइयों और कज़नों समेत नेशनल प्रेस क्लब संजरपुर के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा, सामने से दो आदमी मुसल्ला आए हैं। उन्होंने आकर असले के जोर पर मोटर छीना है और मुझे सीधे वो किया है। उसके बाद मोटर छीन कर फरार हो गया। मैंने पंजाब की चेक पोस्ट पे गया और पंजाब की चेक पोस्ट वालों ने एक गाड़ी तैयार की थी पुलिस की, क्या कि वो उनके पीछे 3 किलोमीटर के बाद गए हैं। उधर से वो वापस आ गए, कहने लगे आगे हमारा जो इलाका नहीं है। ये मेरे भाई है डॉक्टर कासिम, वेटरनरी डॉक्टर हैं, इनसे ये वारदात हो गई है और इसकी चौकी साथ है। पुलिस वाले क्यों नहीं हेल्प कर रहे? चोरों डाकुओं के लिए बैठे हुए वहाँ पे चौकियां क्यों लगाई गई है? चोरों डाकुओं की हेल्प के लिए लगाई गई है। वो वहां से आए रोड से क्रॉस करके चेक पोस्ट पे क्यों नहीं उनको रोक के पूछा गया? फिर भाई वहां पे पहुंचे, वो जा रहे हैं, पीछा क्यों नहीं किया गया उनका? पुलिस को इख्तियार दिए जाए, अगर नहीं है इख्तियार तो पुलिस की जगह पे डाकुओं को बिठाया जाए थाने पे, क्योंकि वो तो पावरफुल है ना, वो तो कम से कम हमारा कोई तावत करेंगे। नहीं करेंगे, जैसे पुलिस लूट रही है वैसे वो भी लूट रहे हैं। ना पुलिस में कोई फर्क है, ना चोरों डाकुओं में कोई फर्क है। पुलिस भी लुटेरी बन चुकी है और चोर डाकू भी हमें तो लूट रहे हैं। फिर ये आता है वजीर आला सैयद मुराद अली शाह से और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब से, वजीर आला शहबाज शरीफ से कि मेहरबानी करें, खुदा का खौफ करेंगे, हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूँ, तो खुदा के खौफ से डरें। आप हुक्मरान हैं, आप हमारा क्या तहफ़्फ़ुज़ करोगे? हम अपने घरों में महफूज नहीं है, तो खुदा का खौफ करो और हमें इंसाफ दिलवाओ। ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, DPO रहीम खान, DSP सादिकाबाद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रेनाला खुर्द थाना सिटी की हदूद में डकैती की बढ़ती हुई वारदातें। डाकू मकामी पान शॉप से 2,30,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस जराइम कंट्रोल करने में नाकाम है, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं। रेनाला खुर्द थाना सिटी की हदूद में डकैती की बढ़ती हुई वारदातें। डाकू मकामी पान शॉप से 2,30,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस जराइम कंट्रोल करने में नाकाम है, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। कराची में पुलिस और शाहीन फोर्स की कार्रवाइयां। शाहीन फोर्स ने डकैती की वारदात को नाकाम बनाकर डाकू को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। जी कराची जावेद आलम ओडो की अहकामात पर कराची पुलिस की डकैतों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर शाहीन फोर्स ने डकैती को नाकाम बना दिया। मुकाबले के बाद डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने शहरी को लूटने वाले डाकू को गिरफ्तार करने वाली शाहीन फोर्स की टीम को शाबाशी दी और उनके पेशे वाराना कारकर्दगी को सराहते हुए मजमूई तौर पर 50,000 रुपए और तारीफी इसनाद का ऐलान किया। गश्त पर मामूर शाहीन फोर्स के एहलकारों ने समामा शॉपिंग सेंटर के करीब कामयाबी के साथ शहरी को लूटने से बचाया और मुलविस मुलजिम को बहादुरी से मुकाबला करते हुए जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम अब्दुर्रज़ाक से छीना गया सामान और असला कब्जे में ले लिया गया। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए कराची पुलिस तमाम वसाइल को इस्तेमाल में ला रही है ताकि सियालकोट में SHO थाना एयरपोर्ट शाहिद महमूद की टीम के हमरा कार्रवाइयाँ। अलियास नामी मंशियात फरोश के कब्जे से 1 किलो 150 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम उमर के कब्जे से असलहा बरामद किया गया। मवेशी चोरी में मुलविस मुलजिम काशिफ से 2 बकरे बरामद कर लिए गए और खातून के अगवा में मुलविस मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार करके खातून को नौशहरा वर्का गुजरांवाला से बाहिफाजत बाजियाब करवाया गया है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओकाड़ा थाना चोशक पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने मुख्वी बच्ची को बाजियाब कर लिया। मजीद जानते हैं दादू राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा DPO मोहम्मद फुरकान बिलाल के अहकामात की रोशनी में थाना चोचक पुलिस ने शब रोज़ मेहनत करने के बाद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना चोचक पुलिस ने लड़की को बरामद करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO ने अगवा होने वाली लड़की का नोटिस ले रखा था। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त गुलाम मुर्तज़ा शकील और मुदस्सर के नाम से हुई है, जबकि एक फरार मुलजिम नदीम उरफ्तीमी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। DPO फुरकान बिलाल ने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून से कोई बाला तर नहीं,
कानून की रट को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। कामयाब कार्रवाई करने पर डीपीओ ने पुलिस टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात देने का ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ दाऊद राजपूत, ब्यूरो चीफ। फिरोजवाला के इलाके राना टाउन दरगाह गुल में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमिनेटरी हाई स्कूल से ट्रांसफार्मर चोरी का मामला। 5 साल कबल स्कूल के बाहर से नामालूम चोर ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए थे। 5 साल से स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चियाँ शदीद गर्मी और सर्दी में बगैर बिजली के तालीम हासिल कर रही हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। ओकाड़ा थाना सदर पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने 2 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से पतंगे और केमिकल डोर बरामद कर लिया गया। डीपीओ फुरकान बिलाल का कहना है कि इंसानी जानों से खेलने वाली को रियायत नहीं दी जाएगी। ऐसे नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। शुजाबाद के नवाही इलाके में बाअसर अफराद की मेहनत कश के मकान पर कब्जे की कोशिश, जान से मारने की धमकियां देने लगे। मकान मालिक अल्लाह बख्श का कहना है कि 5 कनाल रकबा 8 साल कबल ख़रीदा था, पूरी रकम भी अदा कर चुका हूँ। अख्तर हयात खान और उसका बेटा बिलाल खान ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओकाड़ा में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दूसरी जानिब आटे की कीमत में होशरबा इजाफे से शहरी दोहरी परेशानी में मुब्तला हैं। आटे के हसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे हैं। 10 किलो आटे का थैला 650 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है, जबकि हुकूमत की जानिब से 1 किलो आटे की कीमत 49 रुपये मुकर्रर की गई है। शाबाश सिटी डिवीजन पुलिस शाबाश शेलम हज़रत इमाम में हुसैन और उर्स मुबारक दाता हजूर पर अच्छी ड्यूटी करने वालों में तारीफ़ी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। एसपी सिटी ऑपरेशन सरफराज वर्क समेत अहलकारों में सर्टिफिकेट दिए गए। सर्टिफिकेट हासिल करने वालों में डीएसपी नौलखा, एसएचओ लोअर माल, एसएचओ दाता दरबार भाटी गेट, टिब्बी सिटी, रंग महल, मोची गेट, यकी गेट, अकबरी गेट और उनके मुहर्ररान शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखें, जिस तरह से लाहौर में 2 बड़े प्रोग्राम चल रहे थे, जिस तरह से दाता गंज बख्शरी हजवेरी का उसकी था, इसके अलावा जो है वो दूसरा उसकी जो है जारी था। अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस की जानिब से जो है वो बड़ी मेहनत की गई और प्रोग्राम को जो है वो अंजाम दिया गया। जिस तरह से सुबह 5 बजे ही प्रोग्राम शुरू हो गया था और पुलिस सरकारों और अफसरान की ड्यूटियां लगा दी गई थी। हजरत इमाम हुसैन का जो सेलम था वहां पर भी जो है वो पुलिस की एक बारी नफरी थी। ये बहुत जो है वो बड़े प्रोग्राम होते हैं, जो कि एक साल में जो है वो 2 प्रोग्राम आते हैं, जहां पर तकरीबन 15,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को और अफसरान को जो है डिप्यूट किया जाता है। तो उसी पर जब एसपी सिटी की अगर बात की जाए तो सरफराज विरक ने जो है वो अपनी टीम को तश्कील दिया था कि प्रोग्राम जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो किए जाए। तो जिस पर जब प्रोग्राम खत्म हुए तो एसपी सिटी की जानिब से एसएचओ दाता दरबार, भाटी गेट, यकी गेट, मस्ती गेट, इसके अलावा दीगर डीएसपी, जिस तरह से डीएसपी नौलखा है, डीएसपी लोअर माल है, शफीकाबाद है, शादरा है, तमाम को अपने ऑफिस में आज बुलाया गया और वहां पर उनको नकद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। एसपी सिटी का कहना था कि इन्होंने बेहतरीन जो है वो ड्यूटी की है, प्रोग्राम को जो है वो सही इंजाम मुंतकी दिया है। और अगर देखा जाए पुलिस की तो बात करें तो पुलिस जो है वो इन दोनों प्रोग्रामों पर जो है वो सारी रात और सारा दिन तैनात रही। सड़कों के ऊपर जिस तरह से जो है वो तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों का वहां पर आमदोरफ्ती, तो वहां पर तमाम लोगों को जो है वो टैकल करना और उनको अच्छे तरीके से उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात करना। उसी पर एसपी सिटी ने वो डीएजी ऑपरेशन की हदायत के मुताबिक इनमें जो है वो नकद इनाम और इनको सर्टिफिकेट से भी नवाजा है, जिनमें जो है वो मुहर्रर हजरात भी शामिल हैं, जिन्होंने जो है वो अपनी फोर्स वहां पर बजरिया वायरलेस सेट जो है भिजवाई, क्योंकि मुहर्रर की ड्यूटी होती है पुलिस एहलकारों को वहां पर डिप्यूट करना। और कोई भी प्रोग्राम हो तो मुहर्रर के पास जो है वो एक पूरा प्रोग्राम जो है वो प्रिंट होकर आता है और प्रिंट की मुताबिक जो है वो पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई जाती है। और इसी तरह से मुहर्रर हजरात को भी जो है वो नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने अपडेट किया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर डॉक्टर रज़ा तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू, एसटीपीओज और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि रवां माह सदर डिवीजन में कत्ल अंधे कत्ल के 13 मुकदमा ट्रेस किए गए, 7 गैंग्स 18 मुलजिमान गिरफ्तार, 123 मुकदमा ट्रेस किए गए। गिरफ्तार मुलजिमान से 58 लाख से ज़ायद माल मसरूका बरामद किया गया है। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत इजलास सालाना तरक्याती पोर्टफोलियो 2022-23 का जायज़ा लिया गया। PNTRD कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा इजलास में पंजाब में तरक्याती कामों, मुख्तस बजट के रिलीज़ और इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। 4,992 स्कीमों में से 4,377 स्कीमों की मंजूरी दी गई। आपको बताएं कि चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इस हवाले से मज़ीद मालूमात जान लेते हैं अली इमरान चट्ठा से। जी आगाह कीजिएगा अली इमरान। जी ये PND का एक जायजा इजलास था जिसमें तरक्याती बजट पर जो है वो जायजा लिया गया कि क्या प्रोग्रेस है। इस हवाले से सेक्रेटरी PND ने चेयरमैन और मेंबरान को ब्रीफ किया है। उन्होंने बताया कि 685 अरब के मुख्तस बजट में 45 अरब रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं और जो तरक्याती स्कीमें उन पर तेजी से काम जारी है। उन्होंने बताया कि वज़ीर पंजाब से बेरोजगारी की हिदायत है कि बजट को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाए और बिलखसूस जो इज्तिमाई स्कीमें हैं जिससे अवामुन्नास का ज्यादा फायदा, जनूबी पंजाब का ज्यादा फायदा और गुजरात का है, उनको प्रेफरेंस दी जाए। इस सिलसिले अब्दुल्ला सुंबल ने महकमा जात के जो हेड से उनको जो इंतजामी हेड से उनको हदायत की है कि वो क्वालिटी कंट्रोल का मजबूत तरीकाकार अपनाएं और काम के मेयार की तरफ खुसूसी तवज्जो दें और बर वक्त खत्म करें। उन्होंने कहा कि इन मामला पर वो जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करेंगे और अगला इजलास होगा उसमें जो टास्क दिए गए हैं मेंबरान PND को वो 15 रोजा है। जो 15 रोजा टास्क के बाद उनको निगरानी करने की जो जारी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हिदायत की गई है। 15 रोजा टास्क जो है उनके इख्तिताम पर दोबारा इजलास तलब किया है उन्होंने, जिसमें वो उसकी पेशरफ्त का जारी स्कीमों की पेशरफ्त का जो है वो जायजा लेंगे। मैं आपको भी बताता चलूँ कि सेक्रेटरी PND ने ये जो है अभी तक जो है वो कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। जी बहुत शुक्रिया अली इमरान चट्ठा, आपने अपडेट किया। लाहौर में जराइम की बढ़ती शरह के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सादिया तैमूर की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद में बताया गया कि ये ऐवान लाहौर में जराइम की शरह में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 300 के करीब जराइम की वारदातें पेश आईं, जबकि 2 खवातीन को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। करारदाद में मजीद लिखा गया है कि लाहौर पुलिस शहर में जराइम को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। CCBO लाहौर सियासी मुकदमात बनाने की बजाय अपनी ड्यूटी सरअंजाम दें। लाहौर के शहरी इस वक्त चोरों और डाकुओं के रहमो करम पर हैं। मुतालबा किया गया कि लाहौर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन किया जाए। सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ओकाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बढ़ती हुई महंगाई से गरीब आवाम का जीना महाल हो चुका है। शहबाज हुकूमत ने मईशत को तबाह कर डाला। शहबाज शरीफ हर जगह कशको लेकर पहुंच जाते हैं। PTI ने ज़िमनी इलेक्शन में इन लोटों को शिकस्त दी। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ओकाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बढ़ती हुई महंगाई से गरीब आवाम का जीना महाल हो चुका है। सूबाई वज़रा सरदार हसनैन, राजा यासिर हुमायूं, अली अफजल और मोहम्मद मोहसिन लगारी का गुजरांवाला का दौरा, टिकट होल्डर्स और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। PTI की मकामी क़यादत ने वज़रा को शहरियों को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। सूबाई वज़रा ने कहा कि दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराए जाएंगे। इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की गई। DPO जंग मोहम्मद राशिद हिदायत की कम्युनिटी पॉलिसिंग के फ़रोग के लिए नंबरदारान से मीटिंग हुई।
DSP तसव्वुर अली, SHO थाना सदर जंग मजहर शहजाद और इलाका थाना सदर जंग के नंबरदारान शरीक हुए। इस मौके पर DPO जंग मोहम्मद राशिद हिदायत का कहना है कि जराइम पेशा अनासर के मुहासबे के लिए नंबरदारान का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। मीटिंग का मकसद मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और पुलिस के माबैन एतमाद, ताउन और राब्ते की फ़िज़ा को मज़ीद मुस्तहकम और बेहतर बनाना है ताकि मिलजुल कर अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार और जराइम के ख़ात्मे को यकीनी बनाया जा सके। DPO जंग का मज़ीद कहना था कि जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए पुलिस का साथ दें और किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी की इत्तला पुलिस को बर वक्त दें। अपने अपने इलाके में चौकीदारा निज़ाम शुरू करवाएं और जराइम पेशा अनासर की निशानदही करें। नंबरदारान ने मसाइल के हल के लिए DPO जंग को अपनी तजावीज़ भी पेश की, जिस पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई गई। कमालिया में तरक्याती मंसूबों के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत अशफा रियाज फितियाना ने की। मजीद जानते हैं कमालिया से RJ जावेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कमेटी कमालिया ऑफिस में साबिक सूबाई वजीर पंजाब अशफा रियाज फितियाना की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा जट, चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक, SDO पब्लिक हेल्थ, SDO लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर तहसील के अफसरान ने शिरकत की। साबिक सूबाई वजीर पंजाब अशफा रियाज फितियाना ने शुरा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में जारी तरक्याती काम बरक़ रफ्तारी से मुकम्मल किए जाएँ। क्वालिटी और मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक सूबाई वजीर पंजाब अशफा रियाज फितियाना ने कहा कि ज़िला भर में तहसील कमाली को रिकॉर्ड फंड्स मुहैया किए गए हैं, जिससे अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर मद्देनज़र रखते हुए डेवलपमेंट करवाई जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।